Very beautiful good morning to class 10 biology student. So now we are going to start our last chapter of class 10 biology, that is management of natural resources. So the first question which arises from the title of the chapter, what are natural resources? All the things which are present in our environment and we are using that things, these things are known as natural resources. जो चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जिनको हम अपने लिए अपने पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. But because our need changes into greed, that's why we are starting to exploit these natural resources and they start to become reduced, which is very harmful for our environment and for us also. हमारे लिए भी नुकसानदायक है और हमारे environment के लिए नुकसानदायक है. So there is a need of an effective way, एक इफेक्टिव वे की जरूरत है बाय विच वी विल ऑल्सो कंप्लीट आवर नीड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो रिमेन फॉर द यूज ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन व्हाई इज अ नीड टू प्रिजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज? क्या जरूरत है हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की? तो पहली बात, these resources are limited and the formation of these natural resources required a large duration, requires a long time period. बहुत लंबा समय लगा है. लेकिन अगर हम इनको अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो कि इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट वी आर इन द हैबिट ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स. हम बहुत कम समय में चीज़ें पाना चाहते हैं. दैट्स वाई आवर सो मच a large amount of natural resources become exploited. So we have to make up the mind that we have to use the resources for the long term perspective. हमें एक लंबे समय तक चलाना है तो हम उनको बचा पाएंगे. The third thing, that whenever we extract the natural resources, somehow the damage is there to our environment. जैसे हम लकड़ी काट रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा हमारे एनवायरमेंट को. तो क्यों ना हम एक ऐसा मेथड तैयार करें कि जब भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से, तो उसको कम से कम हार्म हो. और तीसरा तरीका, फोर्थ में जो रीजन है, दैट ऑन आवर अर्थ देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अर्थ पर कोई भी एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज का. तो जहां पर ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जहां ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वहां भी यूज किया जाए जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है. सो दीज आर सम रीजन व्हाई शुड वी हैव टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हमारे आसपास एक इतना ऐसा जगह है जहां पर बहुत तरह के प्लांट, डिफरेंट तरह के प्लांट ग्रो करते हैं. इट मीन्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लेस, द लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेस वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन, दीज आर नोन एज फॉरेस्ट. And in this forest, different type of animals are also present. These are known as wildlife. So basically, the group of animals present in the forest is known as fauna, and the group of plants which are present in the forest, these are known as flora. So these flora and fauna are very much important for us, and they are making the biodiversity of our environment. हमारे environment की क्या बना रहे हैं? Biodiversity. Different type of organism are there. So there is a need to conserve this biodiversity, to conserve this flora and fauna, and for this concern and for their interest, some people are there which are preserving or which are deteriorating, which are exploiting our natural resources. The group of these organisms is known as stakeholders. क्या बोलते हैं इसको? Stakeholders. There is a first category of stakeholder where we will consider the villagers which are living around the forest. हम उनको consider करते हैं उन villagers को जो हमारे forest के आसपास रहते हैं. They are using the natural resources but in a limited way. It means they harm the forest, they harm the wildlife in a very little manner. बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिटोरिएट नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते हैं. जैसे दे आर यूजिंग ओनली द लीव्स एंड द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. दे डू नॉट अप्रूटेड द प्लांट. वो अप्रूट नहीं करते हैं प्लांट को, केवल उनके लीव्स को, उनकी ब्रांचेस को यूज करते हैं. वुड को यूज करते हैं, वेस्ट वुड को यूज करते हैं, जिससे वो अपनी हट्स बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं और उनमें अपने मटेरियल्स को स्टोर करने में यूज करते हैं उनको. ठीक है. जो फॉडर होता है, जो वेस्ट वहां पर बचता है, उसको अपनी जो कैटल है उसको ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं. उसके अलावा वहां पर एग्रीकल्चर भी करते हैं, जिससे वहां एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने पर्पजेस के लिए यूज करते हैं. इट मीन्स दे आर यूजिंग द नेचर, दे आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज बट इन अ वे दैट देयर इज अ लीस्ट हार्म टू द नेचुरल रिसोर्स. हमारे नेचुरल रिसोर्स को कम से कम नुकसान पहुंच रहा है. दूसरे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको सीधा रेवेन्यू मिल रहा है
फॉरेस्ट से, बिकॉज बेसिकली द टिम्बर इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन दिस फॉरेस्ट। जो टिम्बर इंडस्ट्री हमारी वो फॉरेस्ट पर बेस्ड है, तो वहां से लार्ज अमाउंट में वुड्स को लिया जाता है, जिससे बहुत डैमेज होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। एज वी नो दैट प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ द लाइफ, हमारी लाइफ की सोर्स है, बिकॉज दीज आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच कैन कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड द होल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन दैट एनर्जी। सारे ऑर्गेनिज्म उसी पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हिमालयन बॉटनिकल गार्डन जो है वो अब एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बन गया है, टूरिस्ट एरिया भी बन गया है। नेचुरली पहले क्या होता था, जब वहां पर कोई बाउंड्रीज नहीं थी तो वहां पर नोमैड्स जो शेफर्ड थे वहां पर वो अपने जो कैटल है उसको ग्रेजिंग कराने के लिए आते थे, जिससे जो टिप्स हैं ग्रासेस के वेस्ट वो हट जाते थे, नई ग्रास को ग्रो करने के लिए जगह मिलती थी। लेकिन जब से वहां एक बाउंड्रीज बना दी गई तो शेफर्ड्स वहां पर अपनी ग्रासेस को समर सीजन में ग्रेजिंग कराने नहीं आ पाते, जिससे नई ग्रास बनती है और वो वहीं गिर जाती है, और जो न्यू जो जनरेशन आने वाली है ग्रास की वो ग्रो नहीं हो पाती, जिससे बहुत डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट को। उसके साथ साथ एक और चीज है कि वहां पर क्योंकि वो टूरिज्म एरियाज बनाते हैं, तो वहां के मतलब लोकल मतलब जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं वहां पर देखने के लिए, जिससे जो फूड आइटम्स हैं, वेस्ट है, वो वहां पर डाल देते हैं उन्हीं जगह पर, जिससे वो एनवायरमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूट भी हो रहा है। थर्ड कैटेगरी आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, द मेन कैटेगरी, बिकॉज दे आर टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, रॉ मटेरियल ले रहे हैं। आपकी टिम्बर इंडस्ट्री है, स्पोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, आपकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपकी लैक इंडस्ट्री है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट। ये सारी की सारी फॉरेस्ट पर बेस्ड है। इट मीन्स दे आर टेकिंग द रॉ मटेरियल, इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स आर कट for the need of these persons for taking the raw material for these industries. So there should be a need of a program by which we can replenish this exploited dead forest, ताकि हम इसको दोबारा से replenish कर सकें। This program is known as silviculture. Whenever you cut one tree, जब भी आप एक ट्री काटो, then sow twice or 4 times more seed on that area। जब भी आप एक ट्री काट रहे हो जगह से, तो उसकी जगह 2 या 2 से ज्यादा नए प्लांट लगाओ, जिससे जो नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरमेंट को, जो नुकसान हो रहा है हमारे नेचर को, उसकी भरपाई हो सके। अब सिल्वीकल्चर क्या फायदा पहुंचा रहा है? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल उन इंडस्ट्रियलिस्ट को टाइम पर मिलता रहेगा। दूसरी चीज, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी नॉर्मल रहेगी, हमारा फॉरेस्ट एरिया जो कवर है वो भी नॉर्मल रहेगा, हमारी जो वाटर साइकिल है वो भी कवर रहेगी, और जब फॉरेस्ट एरिया बहुत अच्छा खासा होगा तो जो फ्लड की कंडीशन है वो भी क्या रहेगी, नहीं डेवलप होगी। सो देयर आर सो मेनी advantages of silviculture. Now the fourth category is that the persons who are not having any interest, they are not getting anything from the environment, उनका खुद का कोई मतलब नहीं है, but they want the nature in the actual condition, जैसी है नेचर वैसा चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी उसको, इसीलिए वो बिना अपने कंसर्न के, बिना किसी इंटरेस्ट के वो नेचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, and these are known as activists. So I will discuss 2 different category of activists in my next session. Till then, goodbye, have a beautiful day.